Good morning, students. Welcome to the class of economics. We are studying Indian economic development, chapter 7, and we have completed growth of education sector in India up to 5th point. Today we will start from page number 182. एजुकेशन सेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं. 6th point है टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन. Since independence, the number of institutions imparting technical and professional education has increased significantly. हमारे इंडिया में आजादी के बाद से जो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इंक्रीज हुए हैं. टेक्निकल जैसे कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे कि सीए, डॉक्टर एटसेट्रा. In 1951, there were 43 diploma polytechnical institutions. Their number has significantly risen to 1914. पॉलीटेक्निकल का मतलब अलग अलग तरह के टेक्निकल वर्क उसमें सिखाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ट्यूबलाइट से लेकर छोटी मोटी चीजों से लेकर मोटर्स तक. There are 3400 recognized engineering colleges offering degree level courses in different disciplines, and there are 3400 engineering colleges. The admission capacity of these courses is 15 lakh students per year, and these courses may be taught to 15 lakh students per year. Presently, there are 289 medical colleges in the country with an admission capacity of 32,815 students. So there are 289 medical colleges in India, and 32,815 students can do the MBBS course in these colleges and other courses also. Number of dental colleges is 282, which are providing BDS degree with an admission capacity of 22,680. Many research centers have also been set up in the country. Example, Indian Institute of Technology, Agriculture Research Institute, Indian Statistical Institute, National Physical Laboratory, National केमिकल लेबोरेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है. फर्स्ट आपको बताया आईआईटी जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फिजिकल लेबोरेटरी, केमिकल लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. दे प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट इकोनॉमी. Many agricultural universities have also been set up in the country with a view to spreading technical education in rural areas. Community polytechnics have been set up. Community polytechnics are also set up. Presently, as many as 617 community polytechnics had been established. So they have less capacity than the college. It is known as community polytechnics. It is similar to college, but their size is small. लेफ्ट में दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड इट्स प्रॉब्लम एरिया. ओवरऑल लिटरेसी रेट हैज शॉट अप फ्रॉम 18.33% इन 1951 टू 74.04%. जो लिटरेट है हमारे यहाँ पर 18.33% से अब वो 74.04% हो गए हैं. Total number of illiterates, which was increasing till 1991 from 22.8 crore in 1951 to 32 crore in 1991, has started decreasing thereafter. In the census of 2001, the total number of illiterates were recorded to be 30.3 crore. This is a new development in the census of 2001. Illiterates की जो population है वो 1951 में 28 करोड़ थी, 22.8 करोड़, फिर वो बढ़ गई 1991 में 32 करोड़ हो गई, मगर अब वो वापस डिक्रीज हो गई है 30.3 करोड़. फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% इज स्टिल फार बिहाइंड द मेल लिटरेसी रेट 82.14%. तो फीमेल लिटरेसी रेट कम है बिकॉज इंडिया के अंदर जेंडर बायसनेस है, महिलाओं को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता और मेल पर्सन को पढ़ाया जाता है. Literacy rate in the rural areas 68.9% is less than the literacy rate in urban areas. और rural areas में literacy rate कम है, urban areas में ज्यादा है because they have less facilities. Rural female literacy rate is just 58.8%, which is miserably low, जो कि बहुत दुख की बात है. Compared to urban female literacy rate of 79.7,
परसेंट, और इसका कारण भी उनकी बैकवर्डनेस है, उनकी पुरानी सोच, पुरानी विचारधारा, उनके ट्रेडिशंस के कारण ऐसा है। हेंस फोकस इज नीडेड टू प्रमोट फीमेल लिटरेसी, इसलिए फीमेल लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए, एंड पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, उसी से देश आगे बढ़ेगा। रूरल एजुकेशन, रूरल एरियाज हैव आल्सो विटनेस्ड वाइड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। रूरल एरियाज में भी अगर आजादी के टाइम से देखा जाए तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल हैज बीन सेटअप फॉर दिस पर्पस, हमने पहले भी इसका नाम पढ़ा था, NRHEC, एंड अंडर दिस काउंसिल 14 रूरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन फंक्शनिंग। इनके अंदर 14 इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। चिल्ड्रन ऑफ SC एंड ST गेट फ्री एजुकेशन इन ऑल द स्टेट, और SC ST के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दी जा रही है। एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, इन ऑर्डर टू इरेडिकेट इलिटरेसी among the adults, special arrangements have been made for adult education. Importantly, in order to eradicate illiteracy among the adults, special arrangements have been made for adult education. Importantly, National Literacy Mission was set up in 1988. Since 1976, formal education program has been launched. It aims at providing meaningful education to the youth of age group of 15 to 25 years. So 8 point is adult and female education, and उनकी इलिटरेसी को खत्म करने के लिए बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट किए गए। नेशनल लिटरेसी मिशन बनाया गया 1988 में, 1976 में फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम बनाया गया, और उसके जरिए 15 से 25 इयर्स के जो लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की गई। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन टू द वुमन, मैनी वीमन पॉलिटेक्निक्स have also been established. Women Education Council is a significant step to promote education among women. तो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वुमेन पॉलिटेक्निक्स बने, एंड वीमेन एजुकेशन काउंसिल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि वीमेन एजुकेशन को स्प्रेड करता है। टोटल लिटरेसी कैंपेन, मतलब सभी को साक्षर बनाया जाए। National Literacy Mission was launched to render everybody literate in the country. This program has now been recast as Sakshar Bharat with a central focus on female education. Female education को उसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। The program covers all those in the age group of 15 and above, और इसके अंदर 15 और उससे ऊपर वाले सभी लोगों को लिटरेट बनाने के लिए प्रोग्राम बनाया है। It may be noted that there are 11 crore illiterates in the country. It may be noted that there are 11 crore illiterates in the country between the age group of 15 to 25 years. In short, as a result of persistent effort during the post-independence period, the number of literates has increased fourfold. तो हमारे जितने भी एफर्ट किए गए उसके जरिए हमारे जो लिटरेट पीपल हैं वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गए। हमने पढ़ा था पहले भी 18.33% से 74.04%. It is 4 times. And also total literacy campaign is aimed to provide education for all, and 11 crore illiterates between the, अभी भी हमारे यहाँ पर 11 करोड़ illiterates हैं between the age group 15 to 25 years. The number of schools and the number of students has increased many times. इन सभी प्रोग्राम्स के बाद स्कूल और कॉलेजेस के नंबर इंक्रीज हुए हैं, लिटरेसी रेट बढ़ गई है, और स्टेट ऑफ केरला में तो ये 94% लिटरेट लोग हैं। In December 1993, in the conference of 9 most populous countries of the world held in Delhi, a plan to give concrete shape to the objective of education for all has been formulated. 1993 में 9 countries की कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली के अंदर, और उसके अंदर एजुकेशन फॉर ऑल को मेन ऑब्जेक्टिव बनाया गया था। राइट टू एजुकेशन, राइट में आपको दे रखा है। इन द year 2009, the government of India has brought about an act called RTE, which is an important part of education for all. It promises free and compulsory education to all. It makes education a matter of rights to all children in the age group of 6 to 14 years. This program is yet to yield its results. अभी भी इसके results हमें मिल रहे हैं। However, it is hoped that RTE will transform dreams into reality by offering basic education to all free of cost. सो आरटी के जरिए हम हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में बदल रहे हैं। सभी को पढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और सभी लोग लिटरेट हों
ऐसा कंपलसरी है, इसलिए एक्ट बनाया गया है। एजुकेशनल फाइनेंस, हु स्पेंड्स ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच? स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 10 to 30% ऑफ इट्स टोटल एनुअल बजट। स्टेट गवर्नमेंट अपने टोटल बजट का 10 to 30% एजुकेशन में खर्च करती है। स्टेट गवर्नमेंट बजट अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 74% ऑफ द टोटल एजुकेशन बजट ऑफ द इंडिया। और पूरे इंडिया में अगर स्टेट्स का पार्टिसिपेशन देखा जाए तो पूरे इंडिया का जितना भी खर्चा एजुकेशन पर होता है उसके अंदर 74% हिस्सा स्टेट्स का है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ₹45,000 crore एनुअली, नियरली 3% ऑफ इट्स टोटल एनुअल बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन के अंदर ₹45,000 crore एनुअली खर्च करती है, जो कि उसके बजट का 3% है। टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज 80 to 90%। तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, दोनों मिलकर स्टेट और नेशनल वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर 80 to 90% टोटल खर्चा जितना भी होता है एजुकेशन पर वो गवर्नमेंट करती है। द पेरेंट्स बाय वे ऑफ फीस फॉर देयर चिल्ड्रन ओनली 4 to 5%। पेरेंट्स जो खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन में सभी का मिलाकर ओनली 4 to 5% ही है। द प्राइवेट ट्रस्ट 7%, जो प्राइवेट ट्रस्ट चलाते हैं स्कूल वो 7% एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं। एंडोमेंट 3%। एंडोमेंट्स होता है जैसे हम कोई एजुकेशन पॉलिसी ले लेते हैं हमारे चिल्ड्रन की, और फिर जब वो बच्चा एक पर्टिकुलर क्लास में आ जाता है तो उसको पढ़ाई के लिए पैसे मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड। तो उनका कंट्रीब्यूशन है 3%। ए ब्रॉड कंक्लूजन दस इमर्जेस दैट इन इंडिया, डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड towards privatization of education, the bulk of spending is done by the central and the state government। चाहे कितना ही प्राइवेटाइजेशन हो गया हो, फिर भी एजुकेशन में जो मेजर पार्ट खर्चा कर रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है, दैट इज 80 to 90%। एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। फिर भी हमारे इंडिया में जो एजुकेशन अभी भी एक चैलेंजिंग प्रपोजिशन है। फोकस ऑन एजुकेशन हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज ओवर टाइम। हमारा फोकस एजुकेशन के लिए इंक्रीज हुआ है। इट इज एनकरेजिंग टू नोट दैट नियरली 96.5% चिल्ड्रन आर नाउ द स्कूल गोअर्स एंड 96.5% चिल्ड्रन अब स्कूल जाने लगे हैं। बट इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स देयर इज ए बिटर ट्रुथ। Despite the constitutional provision for free and compulsory education for the children between the age group of 6 to 14 years, quality of education and infrastructure continues to be disappointing. So we are making laws that 6 to 14 years students are compulsory to get education. We have right to education, but there is no quality in our education. Infrastructure is still far behind. Administrative carelessness compounds the further प्रॉब्लम। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव केयरलेसनेस मतलब जो रेड टेपिज्म है, हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, उसके कारण हमारे इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। ए सर्वे बाय द राइट्स चिल्ड्रन राइट्स एंड यू फाइंड्स दैट चिल्ड्रन कंटिन्यूज टू बी रिफ्यूज एडमिशन टू स्कूल्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। आज भी स्कूलों में क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के रूल्स हैं, इस कारण या तो बच्चों के पास टीसी नहीं होती है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी नहीं होती है, एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता तो उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। इन सब केसेस पेरेंट्स ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आर कंपेल्ड टू पे फीस। उनको एडमिशन के लिए फीस देनी पड़ती है। सच इंस्टेंसेस पॉइंट टू ए सीरियस बोटलनेक इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। बोटलनेक इज ए वर्ड यूज फॉर द रेस्ट्रिक्शन, वर्ड इट इज यूज फॉर द व्हाट वी से constraint। So there is ये बहुत बड़ी रुकावट है ये चीजें एजुकेशन सिस्टम के लिए। This along with the following facts and figures makes education still a challenging proposition in India। Large number of illiterates। आज भी हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा लोग इलिटरेट हैं। इंडिया हार्बर यानी कि अपने अंदर समा रखा है, सबको पाल रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इलिटरेट इंडिया में रहते हैं। प्रेजेंटली नियरली 36 करोड़ पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी इलिटरेट। आज भी 36 करोड़ पीपल इलिटरेट हैं। द नंबर एक्सीड्स इवन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन ही 36 करोड़ से कम है और हमारे यहाँ पर 36 करोड़ तो इलिटरेट ही है। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी द largely degree oriented, showing millions of educated youths down to the corridors of employment exchanges। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज स्टिल अ फार क्राई। तो हमारे एजुकेशन की खराब स्थिति यहीं से मालूम पड़ती है कि वी हैव नंबर ऑफ पीपल हु आर हाईली एजुकेटेड, दे हैव डिग्रीज बट दे डोंट हैव जॉब बिकॉज देयर इज लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया।
जेंडर बायस, अभी भी हमारे यहाँ पर मेल फीमेल में बहुत ज्यादा भेदभाव है. There is still a significant gender bias in offering opportunities of education to male and female. The enrollment ratio is relatively low for the female candidates and their dropout ratio is considerably high. Education system in India does need a substantial change in the attitudes of the people. So we should change our attitude. Girl and boy both are same and both should be given same education and up to the same level they should be developed. Rule लो रूरल एक्सेस लेवल, हमारे यहाँ पर गाँवों में एजुकेशन की पहुंच कम है. देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ डिस्पेरिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन. द एक्सेस लेवल इज कंसिडरेबली लो फॉर द रूरल पीपल कंपेयर टू द अर्बन पीपल. रूरल पीपल को एजुकेशन आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती, वहाँ कॉलेजेस स्कूल अच्छे नहीं होते और उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है. प्राइवेटाइजेशन, देयर इज ए ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन. Being very expensive, private education has tended to widen the gulf between access level for the rich and poor. Private education is very expensive and it has widened the gulf between rich and poor. There is almost a drought of educational opportunities for poorer sections of the society. Poorer sections के लिए education opportunities की भारी कमी है, drought है. Low government expenditure on education. The government has failed to fulfill its commitment of spending nearly 6% of GDP on education. Today we studied that central government is spending 3% only of its annual budget. Actual expenditure has been around 4 to 5% only. This points to the gap between what is intended or desired and what is actually achieved. So government अपने खुद के वादों को पूरा नहीं कर पा रही है. Given these facts, there follows an obvious inference that education in India has failed to reach the masses. पब्लिक तक पहुंचने में एजुकेशन फेल हो गई है एंड हैज आल्सो फेल्ड टू ब्रेक द विशियस सर्किल ऑफ इलिटरेसी. और जो इलिटरेसी का जो चक्र है वो अभी भी खत्म नहीं हो पा रहा है. इलिटरेसी ब्रीडिंग पॉवर्टी, क्योंकि इलिटरेसी से पॉवर्टी आती है और पॉवर्टी से वापस इलिटरेसी आती है, क्योंकि गरीब को खाने को नहीं मिलेगा तो वो पढ़ाई कैसे करेगा. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में. अकाउंट और इकोनॉमिक्स में पूरा सिलेबस आएगा जहां तक मैं आपको नवंबर में पढ़ा दूंगा. तो आप लोग अच्छे से एक एक चैप्टर को लर्न करना शुरू कर दीजिए. जो भी आपको प्रॉब्लम है आप पूछिए, समझिए और मेहनत करिए. हैव ए गुड डे. थैंक यू.